ये निकाल लेंगे 5/13। Question is find the equation of ellipse where vertices are plus minus 13 0, foci is plus minus 5 0. As x coordinate is visible, y is coming 0, indicate it is a standard number 1. और जब ये स्टैंडर्ड नंबर 1 है इसका मतलब ये प्लस माइनस ए 0 है, ये प्लस माइनस ए 0 है। तो ए तो हमारा हो गया 13 और ए ही हो गया हमारे पास 5। तो सबसे पहला काम e की वैल्यू निकाल लो, इट विल बी 5/13। Then I should go for b. b square is a square into 1 minus e square. 116. a square Yes sir, 69 into 169 25/169. 144 ऊपर 144 रह जाएगा, that will be 12 only. सर b 12 होगा, b square तो 144 होगा। b square is 12 square, right? यही हुआ। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1, क्योंकि पहला स्टैंडर्ड है। तो इट विल कम आउट टू x स्क्वायर बाय 169 प्लस y स्क्वायर बाय 144 आउट टू बी 1। आपसे इक्वेशन नहीं पूछी थी, डायग्राम नहीं पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है, यू शुड नो इट। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse whose length of major axis is 20. Major axis is 20 and foci is 0 plus minus 5. करिए। Which standard? So second standard. सर सेकंड सेकंड वाला है सर। Yes. चलिए करिए। Length of major axis means this is what? 2a. A is coming 10. Foci is 0 plus minus 5. AE. तो AE आपके पास है 5। तो E हो गया आपके पास 5/10, it is coming half. B square is 7. Now I should calculate B. सर एक्स स्क्वायर अपॉन में 196 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1। A स्क्वायर हो गया आपका 100, 1 माइनस E स्क्वायर, हाँ जी 1/4, 1/25। राइट। ये कितना हो गया, 100 इंटू 3/4 रहा, 12. तो ये हुआ 25 इंटू 3, 75। B square 75. So what is the equation now? Second standard है, तो x square by b square plus y square by a square is coming 1. What is the answer? X square by 75 plus y square by 100 come out to be 1. Next question please. Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse with major axis along x-axis, major axis along x-axis, and it is passing through 4, 3 and -1, 4.
Which standard? First. Question says major axis along x axis. इसका मतलब पहला स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड है और पास हो रहा है इन 2 पॉइंट से, तो इक्वेशन निकालनी है। सर तो प्लेस करना होगा। यस, पहला काम इक्वेशन हमारी लेंगे हम x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज कमिंग 1। ये एलिप्स हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है। अगर ये यहां से पास हो रहा है तो 4 स्क्वायर दैट विल बी 16 बाय a स्क्वायर प्लस कितना हुआ 9 बाय b स्क्वायर इज 1। दूसरी कंडीशन आएगी 1 बाय a स्क्वायर प्लस 16 बाय b स्क्वायर इज कमिंग 1। ये 2 इक्वेशन हो गए, इनको सॉल्व करना है। इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। देन इट कम आउट टू बी 9 बाय b स्क्वायर माइनस 16 by b square, 16 into 16, right? 16 square is 1 minus 16. यस सर। कितना होता है भाई? सर शायद 256 होता है। बोलो भाई। 256 256 9 minus 256 is minus of 15। ये कितना है भाई? माइनस 246। अच्छा 247 हुआ। 47 हाँ सर 246 is minus 15 b square, or I got it b square is 247 by 15। b square आ गया। अब a square निकाल लेते हैं, पहली इक्वेशन से ही निकाल लो। It will come 16 by हाँ अच्छा इस सिंप्लिसिटी की बता 16 by a square plus 9 by this total, तो ये हुआ 247 और ऊपर 15 आ गया, come out to be 1। Then it will come out to be 16 by a square is 1 minus 15 nines up 135 by 247। I got it 247 is LCM, so 247 minus 135 is 16 by a square। Please find out what this comes। कितना है ऊपर? 112। 16 से कटेगा क्या 112? 7 times। हाँ सर 7 times। 7 times। So a square comes out to be 247 by 7। ये b square रहा, ये a square रहा। So what is my equation? X square by a square, ये रहा 7 by 7 plus y square by 247 by 15 comes out to be 1। 7 यहां चला जाएगा, 15 यहां चला जाएगा। You got your answer। Next question, please. Find the equation of ellipse where endpoints of major axis are plus minus 30. Endpoints of major axis are plus minus 30 and end of minor axis 0 plus minus 2. Endpoint of minor axis are 0 plus minus 2. Please do it। सर इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी, इक्वेशन निकालनी है।
मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट दिए हुए हैं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट दिए हुए हैं. You should find out the equation of the ellipse. X square by 9 plus y square by 4 is 1. मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट क्या होते हैं भाई? Vertices. vertices. Vertices, that is a0 and minus a0. तो प्लस माइनस a कॉमा 0 ये किसके इक्वल है? प्लस माइनस 30 के. और ये आपका माइनर एक्सिस है. माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं एंड पॉइंट b0 एंड माइनस b0, सॉरी 0 प्लस माइनस b. ये कितना दिया हुआ है? 0 प्लस माइनस 2. So clearly A is given in the question as 3, B is given as 2. So equation come out to be x square by a square. So 9 y square by 4 come out to be 1. ये आंसर हो गया. Next question, please. Find the equation of ellipse where length of minor axis is 16. Length of minor axis is 16 and foci are 0 plus minus 6. 0 plus Sir, 0. 0 plus minus 6. Minor axis length is 16 and foci are 0 plus minus 6. सर B तो 8 है. Minor axis. माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी दी है? 16. 16 B 8. तो B तो हो गया 8 Eccentricity. और फोकाई इज दिस, तो AE आपके पास हो गया 6. So what you should do? Square is a square into 1 minus e square. B square हो गया आपका 64. A square निकालना है हमको और इसको आप a square minus a square e square लिख सकते हैं. वो 36 हो जाएगा. Yes, sir. ये वैल्यू इसकी होल स्क्वायर है तो 36 64 plus 36 comes out to be a square, so a square comes out to be 100. A is coming 10 and it is second standard. Yes sir. फोकाई दिया हुआ है, देख लो जरा. सेकंड स्टैंडर्ड Yes. x square by b square plus y square by a square coming 1. I got it x square by 64. Y square by 100. Y square by 100 comes out to be 1. The answer. Next question, please. Center at 0, 0. Major axis on y-axis. Major axis on y-axis. And it is passing through point 3, 2. And it is passing through point 3, 2 and 1, 6. चलिए करिए. सेंटर इज एट 0, 0. वो तो कोई भी स्टैंडर्ड हो 0, 0 होता है, राइट? Second. Major axis along y-axis. What does it mean? Second equation, second standard. Yes. So what I should write here? X square by b square plus y square by a square coming 1. And now it will pass through this point as well as this point. X square हो गया आपका 9 by b square plus y square 4 by a square is coming 1.
It will be 1 by b square plus 36 by a square is coming 1. 9 इसको 9 से कर दें, चलिए इसको 9 से करो, चाहे यहां से 9 करो, एक ही बात है। इसको भी 9 से करना चाहो ये भी कर सकते हो, ये लो, ये करना है आपको 9 तो ये आपने ले लिया। अब ये हुआ 81 बाई बी स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं हम। सर बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2। धीरे भैया धीरे, रिकॉर्डिंग होती है इसके साथ। 81 minus 1 by b square, so it will come out to be 80 by b square, right? ये कट गया, 9 minus 1, is it 8? So b square come out to be how much? 10. And if b square is 10, I can get a also. So 9 by 10 plus 4 by a square come out to be 1. Or I should say 4 by a square is 1 minus 9 by 10. Or I should say 4 by a square is what? 1 by 10. 1 by 10. So a square comes out to be how much? 40. 40. So what is the equation now? X square by 10 plus y square by 40. 40 comes out to be 1. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं इलिप्स के जो मैंने आज खत्म कर दिए। नाउ आई एम गोइंग ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला इज आल्सो हैविंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट ओनली द शेप ऑफ द हाइपरबोला इज गोइंग टू चेंज and slight change in the equation. Remaining things remain same as ellipse. First thing in the hyperbola, when you are going to take, its eccentricity will be greater than 1. So whenever we go for general equation, formula will be PS by PM is coming eccentricity, और eccentricity आपकी greater than 1 है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, पहले जनरल का काम कर लेते हैं, फिर आप स्टैंडर्ड का करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose directrix is 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and focus is 2,3 with eccentricity is 2. With eccentricity given as 2. Now they are asking you find out equation of hyperbola. तो ये हमारा वही पॉइंट P चलेगा, ये हमारा PS हो गया, ये हमारा PM हो गया। Px1. What is my formula? Sir, is E times of PM. Squaring कर लो दोनों साइड। PS we go by distance formula, तो it will be x comma y. Equation come out to be x minus 2 whole square plus y minus 3 whole Yes, sir. square equal to E square 4. Yes, please. Is equal to E square हो गया 4 and PM is that length, so we will say 3x plus 4y plus 5 under root of 9 plus 6 root of whole square. ये इक्वेशन हो गई आपकी जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलिप्स होता तो यहाँ लेस देन 1 आता, ये वैल्यू E की जो रखी जाती, अगर पैराबोला होता तो E 1 रखा जाता, और अगर हाइपरबोला है तो E की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। I think it is clear. yes sir, clear. Now coming on next part, hyperbola standard form. Standard form of hyperbola.
Standard form of hyperbola. In ellipse, what you have done, the directrix were outside and the shape was connected. पूरा एक सर्किल की तरह बन रहा था और एक कनेक्ट हो रहा था आपस में. सर्किल तो नहीं था, दैट इज अ फ्लैटन सर्किल. बट यहां क्या होता है, यहां पर आपका सेंटर तो वही रहेगा जो पहले था. सेंटर ये रहा हमारा 0 0. एंड दिस टाइम the directrix will come at this place. एक डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाती है और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाती है और फोकस आपके बाहर चले जाते हैं. पहले में क्या होता था, पहले में आपका डायरेक्ट्रिक्स बाहर था, फोकस यहां था. यहां फोकस से डायरेक्ट्रिक्स को हमने बाहर बनाया था. यहां पर हमारा डायरेक्ट्रिक्स यहां शिफ्ट हो गया है सेंटर की तरफ और इसका मतलब ये पॉइंट हमारा K है, K डैश, और ये पॉइंट K, और ये हमारा फोकस हो गया. ठीक है, फोकस को थोड़ा सा और मैं पीछे बना रहा हूं. And the shape of hyperbola goes like this. This will be point A. वर्टेक्स यहां आ गया एक तो, और एक वर्टेक्स यहां आ गया. इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस, वो आपका वर्टेक्स कहलाता है. तो ये A डैश, ये फोकस K डैश K, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारे पास. एंड द कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज यू राइट इन द फर्स्ट वन. वही कोऑर्डिनेट दोबारा लिख दो. सेंटर 0 0. ये कोऑर्डिनेट क्या था बताओगे? A by E, 0 और ये माइनस 0. वर्टेक्स था A, 0 या माइनस A, 0. AE, 0. AE, 0. 0 and this is minus of AE, 0. Yes, sir. यहां पर आपका B पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट B डैश रहेगा, लेकिन ये अब की बार कर्व पे नहीं आ रहा है, अलग से बनेगा ये. This time the equation of hyperbola has changed. बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, शेप के अलावा बाकी सब कोऑर्डिनेट सेम है. इक्वेशन इज गोइंग टू चेंज एंड दैट विल कम x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1. In place of plus sign we have minus sign in between now. ये आएगा. और b स्क्वायर वाली जो कंडीशन है वो भी वही रहेगी, a स्क्वायर इंटू, बट इसमें e स्क्वायर माइनस 1 आएगा क्योंकि e बड़ा है 1 से. तो b स्क्वायर इज कमिंग a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1. वहां था 1 माइनस e स्क्वायर, या e स्क्वायर माइनस 1. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही रहेगी जो पहले थी, 2b स्क्वायर बाय a. This is standard hyperbola number 1. जो प्लस साइन के साथ आ रहा है वो आपका AA डैश देगा. अब की बार AA डैश को मेजर एक्सिस नहीं बोला जाता है, AA डैश को बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस. सर तो SS हो जाएगा ना? नो, A टू A डैश, दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस 2A फिक्स की थी ना हमने, वही डिस्टेंस यहां भी 2A है, तो इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है, नॉट द मेजर एक्सिस. इट विल बी 2A. एंड ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फिर से 0B और 0 माइनस B, और इसको हम बोलेंगे B डैश, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस. यहां नाम बदल दिए और कुछ भी नहीं किया है. मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस बोला है और माइनर एक्सिस की जगह कॉन्जुगेट एक्सिस, और द लेंथ इज 2b.
हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने इसमें इक्वेशन बता दी है, सेंटर बता दिया, आपको डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन बता दिया, वर्टिसेस बता दिया, फोकाई बता दिया। यहां पर मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया और यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस की जगह, सॉरी माइनर की जगह कॉन्जुगेट एक्सिस आ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो ये रहा 2b स्क्वायर बाय a, वेयर b स्क्वायर इज a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Now coming on second standard form, हटा दो इसको। Yes, sir. Okay. Second standard will be along y-axis. ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1, ये आपका सेंटर, ये डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2। This is point K, this is point K dash, और hyperbola will be this only. ये point A और ये A dash, ये आपका पॉइंट S फोकस और ये S डैश। कोऑर्डिनेट आर द सेम, 0 0। ये आएगा 0 a बाई ई, यहां आएगा 0 माइनस a बाई ई। ये 0 a हो गया, ये 0 माइनस a हो गया। ये हो गया आपका 0 ए ई, और यहां 0 माइनस ऑफ ए ई। वही कोऑर्डिनेट है। इक्वेशन विल चेंज दिस टाइम, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां माइनस लग जाएगा। पिछले वाले में भी बी स्क्वायर के साथ माइनस, जो भी माइनस लगेगा वो बी स्क्वायर देगा। ये माइनस हो गया, प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1। इन इलिप्स यू हैव टेकन ग्रेटर वैल्यू एज ए स्क्वायर। यहां जो माइनस होगी वो बी स्क्वायर होगी, जो प्लस होगी वो ए स्क्वायर होगी। ये +1 होना जरूरी है। बी स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, कोई चेंज नहीं है। अगेन ट्रांसवर्स एक्सिस, the length is 2a. Then we have conjugate axis, that will be twice of b. Okay, and then the length of lattice rectum LL dash, your formula says 2b square by a. Yes or no? यस सर। ये आपका सेकेंड स्टैंडर्ड इलिप्स हाइपरबोला हो गया। Question are same whatever you have done in the ellipse, only the concept we should keep in mind, यहाँ पे e आपका 1 से बड़ा है and the shape has changed, बस बाकी कुछ भी नहीं है। इक्वेशन मैंने बदली है, बाकी कहीं कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं है। राइट क्वेश्चन प्लीज। x square by 16 minus y square by 9 come out to be 1. Decide which form it is. First standard. First standard, yes. It is standard number 1. So what will be your a square? 3. 16. 16. B square is what? 9. Find out eccentricity. B square is what? 9. A square will be 16.
e square minus 1. 9 by 16 plus 1 come out to be e square. ये हो गया 25 by 16 is 5/4. 5/4. coming 5 by 4. Is it greater than 1? Yes. Yes. इसका मतलब ये हाइपरबोला है, बिल्कुल सही कर रहे हैं. And now they are asking you write down all the information about this hyperbola. This is center coordinate 0, 0. K and K dash. Coordinate is what? This A by E. A by E. A is what? By 4. 16. B is 3. 4. A by E. A by E means And E is 5. 5 by 4. 4. 16. 16 by 16 by 5. 5. 0. Minus 16 by 5 comma 0. Minus 4. ये पॉइंट आपका 40. ये माइनस 40. फोकस बोलो भाई. 5 0. ए ई 5 A by E comma वो A E comma 0. A E 5 12 comma 0. by 5 0 and minus 0. A dash कितना हुआ? 2A. 2A means 8. transverse. ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई. कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी ट्वाइस ऑफ बी. 6 हो गया. Length of major axis, sorry, latest rectum 2B square. 2B square means 2 into 9 by A.